Hello everyone, welcome to Edugens. So today we are going to discuss such important topics which includes ECC, Early Childhood Care and Education, environmental and human rights education, right? So we are coming to an end of this SSB PGT education classes as well as OPSC. Recently we have completed UGC NET syllabus. So very soon we are going to complete this PGT syllabus also. From the very last session, we already had around 10 successful SSB PGT achievers from our batch, and even in OPSC, many of our candidates have appeared their interviews. We are very much hopeful for the results as well. So this batch is going to be completed within this month, or it will take another 1 week to complete all the proceedings. Then we'll again start from Unit 1. So those who are interested to join our batch, they may start joining because as I have already shared you some of the information, and I will come up with some new videos that the government is planning to recruit huge number of PGTs, lecturers, OES in higher education and including school education as well. So let us discuss about the important topics. First, we come to ECC, that is Early Childhood Care and Education. So what does that mean? Early childhood. See, early childhood means वो स्टेज होता है ना जिंदगी का जहां पे आप ग्रो करते हो, यानी कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रैपिड होता है। यहाँ पे एजुकेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करा जाता, यहाँ पे फोकस ज्यादा करा जाता है केयर पर, राइट? So ECC, Early Childhood Care and Education, has been inserted in Article 45 of the Indian Constitution by the 86th Amendment Act 2002, the same Amendment Act in which right to education was inserted in Article 21 Clause A, right? पहले एजुकेशन जो राइट टू एजुकेशन था या फिर जो आपका आरसीएफसी था, ठीक है, 6 to 14 years का सर्व शिक्षा अभियान, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको आप कहते हो, लक्ष्य उसका था, वो यहीं पे था, आर्टिकल 45 में थे। इससे 21A में लिया गया एज अ फंडामेंटल राइट और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इट वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2009 एंड एनेक्टेड इन जनवरी 2010। जनवरी 2010 से ये लागू हो गया। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 6 years। बेसिकली एनईपी 2020 की अगर बात करें, एनईपी से पहले कहा गया कि बर्थ, आप जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के 6 साल के तक वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आएगा। अगर हम एनईपी 2020 की बात करें, वो कह रहा है बर्थ टू 8 years तक। याद रखिएगा ये पॉइंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ईसीसी कह रहा है कि birth to 6 years is called early childhood life or early childhood stage. It includes birth to 6 years. But in NEP 2020, it defines early childhood care and education, and national policy will be found for ECC containing birth to 8 years. It will consist of 8 years, but earlier it was of 6 years, which are called the formative years as the foundation for physical, cognitive, socio-emotional, and language development. So it more focuses on the all-round development of a child from the very beginning. That is early years of life. That is why it is early childhood care and education. So in childhood, you will be given care, health care, nutrition, etc., as well as some education. Some education means basic literacy, basic numeracy, basic skills of learning. So it will definitely affect your physical, cognitive, socio-emotional, and language development. So early years means the early years of life where a child starts learning, a child starts understanding himself or herself, and it lays a foundation of physical, cognitive, social, इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से एक बच्चा बेस से सीखना स्टार्ट करता है, ये फाउंडेशन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, मीनिंग क्या है फिर? ईसीसी का मीनिंग क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा गति से होता है, रैपिड
ग्रोथ होता है यहाँ पे। सो ईसीसी ब्रॉडली इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स केयर। अभी मैंने कहा ये क्या प्रोवाइड करता है, ये केयर प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग किस चीज का केयर प्रोवाइड करता है, हेल्थ, न्यूट्रिशन एज वेल एज अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन। ईसीसी में केयर तो होता ही है, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन केयर। और आपको बता दूं यहाँ पे ना कि सिर्फ बच्चे का बल्कि नर्सिंग मदर जो उनके माता जी हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है वो पूरा डिपेंडेंट होता है अपने मदर के ऊपर। तो अगर माँ सलामत रहेंगे ना तो बच्चे सलामत रहेंगे। तो इसलिए केयर लिया जाता है बच्चे का, एज वेल एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन चीजों का भी ख्याल रखा जाता है। उसके साथ ही साथ अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, आपने आंगनबाड़ी में देखा होगा वहां पे कैसे आप लोगों का ख्याल रखा जाता है, बच्चों का ख्याल रखा जाता है। उन्हें खाने के साथ ही साथ, न्यूट्रिशन के साथ ही साथ उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करा जाता है। डोंट राइट एनीथिंग इप्सिता। It provides a protective, stimulating environment consisting play-based and developmentally appropriate activity vital for children's physical, motor, cognitive, socio-emotional and language development. ईसीसी ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जो कि प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि बच्चों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड इविल्स, कोई भी इविल प्रैक्टिस से उसे दूर रखता है। स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, स्टिमुलेटिंग यानी मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट, ऐसा एक एनवायरनमेंट जहां पे आपको पढ़ने का मन करे, आपको कुछ नया करने का मन करे। कंसिस्टिंग प्ले बेस्ड, यहाँ पे प्ले बेस्ड एक्टिविटीज होते हैं। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, बच्चे के डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली काम करा जाता है, यानी कि उनके डेवलपमेंट के लिए उसे क्या क्या चाहिए, जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन बताया जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कराए जाते हैं ताकि उनमें मसल्स ग्रोथ हो, उनमें मेंटल कंडीशंस का ग्रोथ हो, इस तरीके की चीजें करे जाते हैं। लाइक चिल्ड्रन फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, इट इज डन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो इसी से कितना काम कर रहा है, वो भी इतने छोटे बच्चे के साथ, ताकि एक बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले जहां पे उसको हेल्थ, न्यूट्रिशन, लर्निंग अपॉर्चुनिटी सारा कुछ मिल जाए। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा क्या कह रहा है देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट 2011, जो मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया था, अभी 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी बजट पास कर दिया है, मतलब पैसा सैंक्शन किया है। करीब 12,000 करोड़ सैंक्शन हुए हैं सेंसस के लिए। अभी फिर से हमारा सेंसस होगा, जनगणना होगा, जो कि लास्ट हुआ था 2011 में। 2011 में जो सेंसस रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है अराउंड 150 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर एट दिस स्टेज, यानी कि बर्थ टू 6 इयर्स के स्टेज पर कितने हमारे बच्चे हैं 158 मिलियन, यानी कि 150 इंटू 10 lakhs। ठीक है, 150 इंटू 10 lakhs, तो सोच लीजिए कितना हो जाएगा ये, समझ रहे हो, इतने बच्चे इस स्टेज में है। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NPECCE 2013, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ अर्ली ईयर्स। अर्ली स्टेज के 3 पीरियड होते हैं। एक होता है कंसेप्शन टू बर्थ, जो कि माँ के कोख में होता है। ठीक है, जिस पीरियड में आप माँ के कोख में बढ़ते हो, कंसेप्शन टू बर्थ, ये एक पीरियड है। मैंने कहा था माँ का भी ख्याल रखा जाता है, तो यहाँ पे नर्सिंग मदर जो है ना, जो मतलब जो प्रेग्नेंट मदर्स होते हैं, एक्सपेक्टेंट मदर्स होते हैं, तो उनका ख्याल रखा जाता है, कैसे वो मतलब प्रिकॉशंस लेंगे, वो किस तरीके से एक हेल्दी बच्चे को जन्म देंगे, खाना पीना, डाइट, हेल्थ, हर कोई चीज का उनका ख्याल रखा जाता है। जब आपका जन्म होता है, बर्थ टू 3 इयर्स, ये एक स्टेज होता है। देन 3 to 6 इयर्स जो वो स्कूल जाता है, यानी आंगनवाड़ी केंद्र जाता है, बालवाटिका जाता है, वहां पे भी ख्याल रखा जाता है। सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 stages। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनका ऑब्जेक्टिव, बेसिकली फर्स्ट दे इंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का सेफ्टी, उनका सिक्योरिटी, उन्हें एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस, और उनको रिस्पेक्ट करना। आप कहोगे सर बच्चों को क्या रिस्पेक्ट करना, बच्चे भी, उनमें डाइवर्सिटी है, उनमें भी इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है, उनमें भी कुछ खामियां, कुछ खूबियां हैं, मतलब कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। बच्चे में बहुत सारे प्रकार के नटखटपन भी होता है, कोई बहुत शांत है तो कोई बहुत ज्यादा फ्यूरियस है। तो इन सभी के चलते हमें सभी बच्चे का जो भी चीजें आप कह सकते हो कि उनमें टैलेंट है, या उनमें जो भी जो कहते हैं ना कि स्टंट दिखाने का या फिर कुछ नया करने का जो जुनून होता है, उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट ऑल द चिल्ड्रन व्हाइल वी टीच देम। नेक्स्ट इज गुड एंड बैलेंस डाइट। वो क्या करता है,
मतलब उनका ऑब्जेक्टिव है ईसीसी का कि बच्चों को एक अच्छा और बैलेंस डाइट, अच्छा मतलब जो उनके हेल्थ के अप्रोप्रिएट होगा, और बैलेंस का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खिला देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि अंडर न्यूट्रिशन रह जाए। इनकलकेट हेल्दी हैबिट, हाइजीन प्रैक्टिस एंड सेल्फ हेल्प स्किल्स। बच्चों को हेल्दी हैबिट सिखाएंगे, जो अच्छा हैबिट, जैसे कि एक्सरसाइज करना, ध्यान करना, अच्छा खाना खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये सारे हेल्दी हैबिट्स होते हैं। हाइजीन प्रैक्टिसेस मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग से लेकर के नाखून काटना और बाल काटना, ये सब हाइजीनिक प्रैक्टिसेस होते हैं। कपड़े साफ पहनना, ठीक है, मतलब हैंड वॉश करना, ये सब हाइजीन प्रैक्टिसेस होता है। सेल्फ हेल्प स्किल मतलब खुद काम करना, खुद का काम खुद करना सीखो, ये सब भी सिखाया जाता है ईसीसी के अंडर में। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट करे जाते हैं। स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कैसे बच्चे कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, वहां पे सिखाया जाता है। आप किसको किस नाम से बुलाओगे, मम्मी पापा को कैसे बुलाओगे, कोई बुजुर्ग होता है तो उसको कैसे बुलाओगे, दोस्त होते हैं तो उनको कैसे कम्युनिकेट करोगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर डेवलप्ड हियर। फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद डेफिनेटली फिजिकल डेवलपमेंट होगा। बहुत प्रकार के फिजिकल एक्टिविटीज करे जाते हैं, बहुत प्रकार के एक्सरसाइजेस करे जाते हैं, योगा करे जाते हैं, बच्चे को सिखाया जाता है हाउ फिजिकल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। फोस्टर सेंसरी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, बच्चों में सेंसरी एबिलिटी एंड कॉग्निटिव एबिलिटी भी इनिशिएट करा जाता है। नेक्स्ट इज सोशल स्किल एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, सो दे डेवलप द सोशल स्किल्स एज वेल एज कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। यानी बच्चे कैसे सोशल स्किल सीखेंगे, सोशलाइजेशन, कल्चरलाइजेशन, राइट, एनकल्चरेशन, ये सब सीखेंगे। कैसे सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी के नॉर्म्स को कैसे फॉलो करना है, दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे हमें इक्वालिटी मेंटेन करना है, ये सारी चीजें कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। आप अपने अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप करोगे टू डील विद डाइवर्स सिचुएशंस, ठीक है। ये सारे चीजें देखिए ईसीसी में दिया जाता है बच्चों को, यानी अर्ली इयर्स ऑफ चिल्ड्रन। तो अब मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को आंगनवाड़ी में पढ़ाने के लिए इनको भेजा जाता है? क्या ईसीसी का यही टारगेट है? आप मुझे जरूर आंसर कीजिएगा। इतना सब ऑब्जेक्टिव जानने के बाद आपको क्या लग रहा है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, तब तक हम कंपोनेंट्स पे चलेंगे। ईसीसी में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट कंपोनेंट है हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। मैंने कहा था हेल्थ के बारे में देखा जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, हाइजीन प्रैक्टिसेस मेंटेन होता है। नेक्स्ट इज अर्ली लर्निंग, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आपको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, चाहे वो आपके मदर टंग में क्यों ना हो, आपको सिखाया जाता है। अर्ली स्टिमुलेशन, अगर आप में कोई भी प्रकार का मान लीजिए कोई बीमारी दिखाई देता है, या फिर कोई ऐसा हैबिट जो आपके अंदर है जो कि एबनॉर्मल है, वहीं पे अर्ली स्टिमुलेशन पता कर दिया जाता है। और केयर प्रोटेक्शन, केयर भी दिया जाता है, आपको प्रोटेक्ट भी करा जाता है। लास्टली एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ये इनका कंपोनेंट्स है। अब हम चलेंगे सम ऑफ द क्वालिटी डायमेंशन। ईसीसी छोटे बच्चों को पढ़ाता है, अर्ली इयर्स ऑफ चिल्ड्रन, उनको जो क्या कहते हैं डेवलप कराने के लिए इनका जिम्मा होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो क्या उनके लिए कोई क्वालिटी डायमेंशन नहीं है? सिर्फ क्वालिटी डायमेंशन स्कूल, हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में होता है ना। क्वालिटी डायमेंशन हर लेवल ऑफ एजुकेशन में होता है, चाहे वो ईसीसी क्यों ना हो। सो एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हैज आइडेंटिफाइड 6 बेसिक डायमेंशन ऑफ ईसीसी। 6 बेसिक चीजों पे इन्होंने फोकस किया है। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट करिकुलम, सही करिकुलम डेवलप करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये कह रहा है कि ईसीसी तब इफेक्टिव होगा, तब क्वालिटेटिव कहलाएगा, जब उनके लिए प्रॉपर करिकुलम होगा। लेकिन बहुत आंगनवाड़ी में देखिएगा उनके पास कोई पर्टिकुलर करिकुलम नहीं होता है, प्रॉपर करिकुलम नहीं होता है, क्योंकि वो बस बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को जो खाने का चीज है जो दिया जाता है वो प्रोवाइड करते हैं, और उन्हें सिर्फ कुछ चीजें एक्टिविटी के थ्रू कराते हैं, जैसे कि कोई गेम हो गया, कोई छोटा मोटा एक्टिविटी करा देते हैं, लेकिन उनका कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता है। दे डू नॉट फॉलो द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? डाइवर्सिटी दिखाई देगा। जिस आंगनवाड़ी में अच्छा खाना मिला, अच्छा टीचर है, वहां पे डेफिनेटली डेवलप करेंगे, बाकी ये वजह अंडर डेवलप्ड हो जाएंगे। इसलिए एनसीएफ कहता है कि ईसीसी में सबसे पहले एक अप्रोप्रिएट करिकुलम डेवलप कराना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? करिकुलम तो अच्छा वाला आ गया, लेकिन मेरे पास अच्छे टीचर नहीं है, तो क्या होगा? तो इसलिए ट्रेन्ड एंड एडिक्वेटली रिवॉर्डेड टीचर्स को हमें रिक्रूट करना पड़ेगा एट दिस लेवल। अब ये भी और एक प्रॉब्लम है, उनको कहा जाता है एडब्ल्यूडब्ल्यू, आंगनवाड़ी वर्कर।
आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए उतना क्वालिफिकेशन कुछ मैंडेटरी नहीं होता है, उस टाइम से चलता आ रहा है आंगनवाड़ी। जो भी अच्छा पढ़ाई कर लेता है उसको आंगनवाड़ी में नौकरी मिल जाता है। नौकरी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे वो परमानेंट हो। इससे क्या होता है, दे आर नॉट एडिक्वेटली ट्रेंड। उनके पास क्वालिफिकेशन है लेकिन ग्रेजुएशन का है या तो +2 का है यानी हायर सेकेंडरी का, लेकिन उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। सो इफ दे आर नॉट ट्रेन्ड ऑन ईसीसी, इफ दे आर नॉट ट्रेन्ड ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग, देन हाउ विल यू एक्सपेक्ट टू बी वेरी मच फ्रूटफुल एट दिस लेवल। अगर मुझे नहीं पता है बच्चों को इस टाइम में उनका न्यूट्रिशनल कैलोरी कितना इंटेक करना है, कितने फाइनेंस आई मीन कितना उनको एक्टिविटीज यानी फिजिकल एक्टिविटीज कराने जरूरी है, क्या क्या उनके ग्रोथ होते हैं, यहाँ पे किस चीज का प्रॉब्लम आता है, किस प्रकार का डिजीज उन्हें इस टाइम में कॉमनली उनमें देखा जाता है, अगर मुझे ये सारी चीजें नहीं पता है तो कैसे मैं उन लोगों के साथ डील कर सकता हूँ। सो इसीलिए ट्रेन्ड एंड एडिक्वेटली रिवॉर्डेड टीचर्स को हमें अपॉइंट करना चाहिए। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट टीचर स्टूडेंट रेशियो। एक अच्छा टीचर स्टूडेंट रेशियो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन नीड। बच्चों को जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए, देखिएगा इस स्टेज में क्या होता है, आंगनवाड़ी में बहुत सारे मतलब दीवार पर बहुत सारे ड्राइंग्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए कलरफुल बुक्स आते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए भी बहुत सारे कलरफुल चीजें लाए जाते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जो भी इस बच्चे को चाहिए होगा इस स्टेज में वो प्रोवाइड करा जाए। एनकरेजिंग सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, इस लेवल पर सुपरविजन मॉनिटरिंग होना चाहिए। और लास्टली कह रहा है इंप्रूवमेंट इन लर्निंग लेवल, बच्चे का जो लर्निंग लेवल है उसमें इंप्रूवमेंट आना चाहिए। ये 6 बेसिक डायमेंशन होता है ईसीसी का, क्वालिटी डायमेंशन की अगर हम बात करें। अब देखिए ईसीसी तो अब आया है, उससे पहले क्या था, और जितने सारे आंगनवाड़ी हम देख रहे हैं वो किसके अंडर में वर्क करता है, उसको कहा जाता है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। सो आईसीडीएस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि इंडिया सबसे पॉपुलस कंट्री है, इसलिए हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। It was launched by Government of India on 2nd October 1975 on the eve of Mahatma Gandhi's birth anniversary to address health, nutrition and developmental needs of children under 6 years of age. महात्मा गांधी जी के जन्म दिवसीय स्मारक पर इसको भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 में इसको लॉन्च किया था, वो भी बच्चों के डेवलपमेंटल नीड और हेल्थ न्यूट्रिशन का ख्याल रखने के लिए। इट वॉज यूनिवर्सलाइज्ड इन 2002, 2002 में इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया गया। आईसीडीएस इन उड़ीसा, अगर हम उड़ीसा की बात करें, अगर पूछा जाए एग्जाम में, सो अगर देखा जाए उड़ीसा में 71,000 सैंक्शन सेंटर्स है आईसीडीएस के। आईसीडीएस के कितने सेंटर है? 71,000, आउट ऑफ विच 60,918 आर आंगनवाड़ी सेंटर। कितने आंगनवाड़ी सेंटर है? 60,918 फुल फंक्शनल, मतलब जिसको आप कह सकते हो फुल आंगनवाड़ी है। और 10,216 मिनी आंगनवाड़ी, छोटे छोटे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। आईसीडीएस किन के लिए होता है? बेनिफिशियरी कौन है? फर्स्ट इज एक्सपेक्टेंट एंड नर्सिंग प्रेग्नेंट मदर, यानी कि एक्सपेक्टेंट मतलब जो बच्चा जन्म देने जा रहे हैं, मतलब अभी तक जन्म नहीं दिए हैं बट दे आर एक्सपेक्टिंग देयर चाइल्ड। एंड नर्सिंग प्रेग्नेंट मदर्स मतलब जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है एंड दे आर वेरी क्लोज टू द डिलीवरी, तो उनके लिए होता है आईसीडीएस, उनका ख्याल रखा जाता है। चिल्ड्रन ऑफ बर्थ टू 6 ईयर, 6 से बर्थ से लेकर के 6 साल तक के बच्चों का ख्याल रखा जाता है। एडोलेसेंट गर्ल्स बिटवीन 11 टू 18 ईयर्स, 11 टू 18 ईयर्स के एडोलेसेंट गर्ल्स का ख्याल रखा जाता है। हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन का वुमेन बिटवीन 15 टू 45 ईयर्स, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्टिव ईयर कहा जाता है, प्रोडक्टिव एज कहा जाता है, तो इसलिए उनका ख्याल इस टाइम में रखा जाता है। तो आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आईसीडीएस सर्विसेज, आईसीडीएस में हमें क्या क्या मिलता है, मतलब बच्चों को क्या क्या दिया जाता है। फर्स्ट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब पूरा दिन का खाना नहीं होता है। सप्लीमेंट मतलब आप जो भी अपने घर पे खाना खाते हो उसके साथ ही साथ कुछ ऐड ऑन करा जाता है, ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा खाने को मिलता है। न्यूट्रिशन जैसे कि मिलेट्स हो गए, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलते हैं। इम्यूनाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए चीजें मिलते हैं। हेल्थ चेकअप होता है आप लोगों का। रेफरल सर्विसेज, अगर मान लीजिए किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है फॉर हायर इंक्वायरी। मान लीजिए किसी का अगर देखा जाए यहाँ पे किसी प्रकार का प्री नाटल और पोस्ट नाटल डिसेबिलिटी दिखाई देता है तो उनको रेफर कर दिया जाता है टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। उसके बाद वो उसको फॉलो अप करते हैं, ठीक है। उसके बाद
प्री स्कूल एजुकेशन, स्कूल से आने से पहले आपको एजुकेशन जो है वो यहीं से मिलता है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन के बारे में और हेल्थ के बारे में सिखाया भी जाता है। क्लियर? अभी आगे बढ़ेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन पर। एनवायरमेंट क्या है और एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है? सो एनवायरमेंट इज derived from the French word environner, which means encircle और surrounding। आपके चारों तरफ यानी परिवेश कहते हैं, हमारे चारों तरफ जो भी दिखता है वो एनवायरमेंट है। ठीक है, एनवायरमेंट इज समथिंग विच इज सराउंडेड बाय अस। तो environmental education is a learning process that increases people knowledge and awareness about the environment and associated challenges। एनवायरमेंट के बारे में और उसके संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में लोगों को बताना है, उनका नॉलेज गेन करना, उनका नॉलेज बढ़ाना, अवेयरनेस बढ़ाना रिलेटेड टू एनवायरमेंट। डेवलप द नेसेसरी स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड फोस्टर्स एटीट्यूड, मोटिवेशन, कमिटमेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड टेक रिस्पॉन्सिबल एक्शन। हम लोगों को एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को बताते हैं, नॉलेज देते हैं, अवेयरनेस कराते हैं, ताकि उनमें वो स्किल्स डेवलप हो, वो एक्सपर्टाइज डेवलप हो, जिससे वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, टू टेक सम रिस्पॉन्सिबल एक्शन, टू फोस्टर एटीट्यूड, मोटिवेशन, कमिटमेंट। ठीक है, मतलब आपको, आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको पता है जीएचजी गैस के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको पता है, एनवायरमेंटल हैजर्ड के बारे में पता है, तो आप रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हो, आप एनवायरमेंट को पोल्यूशन नहीं कर रहे हो। लेकिन क्या एनवायरमेंट आप ही से पोल्यूट होता है, बाकियों से नहीं होता है क्या? और जिन लोगों से होता है, क्या उन्हें एनवायरमेंट के बारे में पता है, पोल्यूशन के बारे में पता है? उन्हें नहीं पता है। सो आपको क्या करना है, व्हाट इज योर रोल? चुपचाप रह जाओ, आपको कोई भी चीज बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, आपको बताना पड़ेगा, आप रिस्पॉन्सिबल हो ना। तो इसीलिए आप क्या करोगे, सभी को अवेयर कराओगे एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स क्या है, हमें मिलजुल करके कैसे, हम ही को करना है, कोई हमारे लिए कर नहीं देगा, हमें करना है, हमें एनवायरमेंट को सुधारना है। ठीक है, सो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल डेवलप अवेयरनेस, कंसर्न एंड नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट and learn to use this understanding to preserve, conserve, utilize the environment in a sustainable manner for the benefit of present and future generation। मैंने आप लोगों को बहुत बार सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड है बार बार बताया है। सस्टेनेबल मतलब लीव द फ्यूचर एंड लीव समथिंग फॉर द फ्यूचर, लीव एंड लेट लीव अदर्स। आप प्रेजेंट में उसको बेनिफिट के लिए यूज करो अपने एनवायरमेंट को, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एनवायरमेंट के बचा के रखो। डेवलपमेंट वो होता है जो खुद जियो और दूसरों को भी जीने के लिए दो, वही डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। वैसे ही एनवायरमेंट में हम, अगर हमें सस्टेनेबल एनवायरमेंट बनाना है तो हमें अपने एनवायरमेंट को प्रिजर्व, कंजर्व, यूटिलाइज करना है, और कुछ एनवायरमेंट को हमें सेव करना है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, हम क्यों देते हैं ये एनवायरमेंट एजुकेशन? फर्स्ट, टू डेवलप द सेंस ऑफ अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट अबाउट एनवायरमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंट के रिगार्डिंग उन्हें बताने के लिए, और उन्हें प्रॉब्लम्स जो है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि ओजोन लेयर हो गया, ठीक है, एसिड रेन हो गया, जीएचजी गैसेस हो गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन हो गया, ये सब के बारे में उन्हें बताना है, राइट। और उसके साथ ही साथ उसके प्रॉब्लम्स के बारे में समझाना है। मे बी आपको पता है कि गर्मी बढ़ गई है, लेकिन किसके वजह से बढ़ रहा है उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए। जीएचजी गैस क्या होता है वो बताना चाहिए, उसका इफेक्ट क्या है वो बताना चाहिए, सोल्यूशन क्या है वो भी बताना चाहिए। अर्पिता कह रहे हैं मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर। यस, वेरी गुड। और क्या है, टू हेल्प स्टूडेंट्स इन रियलाइजिंग द इंटर रिलेशन बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। देखिए, इंसान और नेचर, इन दोनों का जो रिलेशन है उन्हें हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंसान अपने लिए एनवायरमेंट को खत्म ही कर दे और पता चला कि एनवायरमेंट के बिना इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें समझना चाहिए हम दोनों में क्या रिलेशन है। टू क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट एनवायरमेंट अमंग द स्टूडेंट्स के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है रिगार्डिंग एनवायरमेंट। To develop proper skill required for the fulfillment of aims of environmental education and educational evaluation। तो लोगों के अंदर एक प्रकार का स्किल डेवलप करना है। स्किल मतलब कोई ज्यादा बड़ा स्किल जो हम इंजीनियरिंग स्किल, एरोस्पेस स्किल, राइट, वो स्किल नहीं होता है। स्किल मतलब कैसे एनवायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाए, कैसे एनवायरमेंटल कंडीशन को हम फुलफिल कर पाए, कैसे एनवायरमेंट के साथ हम अपने आप को सस्टेनेबल रख सके। एनवायरमेंट भी रहेगा, हम भी रहेंगे, हमारे नीड्स भी फुलफिल होंगे, बस यही चाहिए हमें।
to help the students in realizing the importance of taking proper step to solve environmental problems। आपने बचपन में ये किताबों में पढ़ा होगा कि प्रॉब्लम ये है तो आप कैसे सोल्यूशन कर सकते हो, व्हाट इज योर रोल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। मतलब एनवायरमेंट एजुकेशन से हम बच्चों को पढ़ाएंगे एनवायरमेंट के बारे में और उन्हीं से राय लेंगे कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Next, to develop required curiosity among students for the realization of environmental problems so that they would be inspired to work for the solution of such problem। यहाँ पे बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी डेवलप करा जाए, मतलब करेंगे हम, ताकि वो इंस्पायर होंगे, वो मोटिवेटेड होंगे टू सॉल्व द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, वो खुद आकर के एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, हम एनवायरमेंटल एजुकेशन में किन चीजों के बारे में पढ़ाएंगे? फर्स्ट इज बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ाएंगे। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ाएंगे, और फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, क्या क्या कंपोनेंट रहेगा एनवायरमेंटल एजुकेशन में? फर्स्ट, नॉलेज एंड अवेयरनेस, लोगों को नॉलेज देंगे व्हाट इज एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पोल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, वो नॉलेज है और अवेयरनेस है। पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटीज, कुछ पार्टिसिपेशन कराएंगे, कुछ एक्टिविटीज प्रोवाइड कराएंगे। एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, उनका एटीट्यूड डेवलप कराएंगे टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका स्किल और कैपेसिटी डेवलप कराएंगे, जैसे मैंने कहा स्किल डेवलप करना। फील्ड ट्रिप्स, हम फील्ड ट्रिप्स पर लेके जाएंगे, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा हो गया, ठीक है, एनवायरमेंटल हैजिडियस प्लेस जहाँ पे मान लीजिए कहाँ पे जहाँ पे फ्लड हुआ है, या फिर जहाँ पे बहुत सारे प्रकार के देखे जाते हैं, लाभा देखे जाते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को भी हम देखेंगे। एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में हम उन्हें बताएंगे। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब अभी मैंने बताया ऐसे प्रैक्टिसेस, देखिए जो चीज हम यूज कर रहे हैं जो खत्म हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये जो प्रैक्टिस है जो हम खत्म कर देते हैं, पेट्रोल डीजल सब खत्म कर दें, इसके अल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं, दैट इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। पहले हम वो चीज यूज करते थे हमारे फायदे के लिए जो खत्म हो जाता था, अब से हम वो चीज यूज करते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी, जो मान लीजिए सोलर इलेक्ट्रिसिटी, हम अगर सोलर इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करेंगे, राइट, तो सोलर पैनल से सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा, वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है जिसे हम अभी भी यूटिलाइज करते हैं और कल भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पानी खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस उन्हें सिखाएंगे। लास्ट इज एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन, एनवायरमेंट को इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एनवायरमेंट में देखे जाते हैं, एक QI हो गया, पोल्यूशन इंडेक्स हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत प्रकार के चीजें जो है हम देखते हैं एनवायरमेंट में कैसे इवैल्यूएट करा जाता है, ठीक है, उन्हें सिखाना पड़ेगा। लेवल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, हम किस प्रकार के एनवायरमेंट एजुकेशन दे सकते हैं? फर्स्ट इज फॉर्मल लेवल, फॉर्मल लेवल पे क्या दे सकते हैं? टू इंक्लूड टॉपिक्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट इन करिकुलम, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग एनवायरमेंट एजुकेशन क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, करिकुलम के अंदर है। तो फॉर्मल लेवल पर हम एनवायरमेंट एजुकेशन को करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि बच्चे एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल रखने से और क्या होगा? टू टीच द इफेक्ट्स ऑफ एफोरेस्टेशन, डिग्रेडेशन एटसेट्रा ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर इस एफोरेस्टेशन, राइट, एंड डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन, इनका क्या इफेक्ट है। अगर डिफोरेस्टेशन होता है तो क्या होता है, अगर एफोरेस्टेशन होता है तो क्या होता है, राइट, एसिड रेन से क्या होता है, ये सारी चीजें हम अगर उन्हें फॉर्मली पढ़ाएंगे तो उनमें नॉलेज और अवेयरनेस आएगा। इनफॉर्मली कैसे इम्पार्ट कर सकते हैं एनवायरमेंट एजुकेशन? फर्स्ट इज ट्रिप और टूर टू कंजर्व फॉरेस्ट रिजर्व टू मेक देम अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। कहीं पे कंजर्व फॉरेस्ट है, मान लीजिए चंद का फॉरेस्ट है, ठीक है, या फिर मान लीजिए भीतरकनिका, ठीक है, तो इस प्रकार के प्लेसेस पे उन्हें लेके जाएंगे जहाँ पे कंजर्व्ड एरियाज है, जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, वहां पे लेके जाएंगे, उन्हें दिखाएंगे, उसका इंपॉर्टेंस समझाएंगे कि एक जमाना था हमारे पास बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना थे, अब वो नहीं देखे जा रहे हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं, वो अभी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या इफेक्ट है और क्यों है, ये सब हम उन्हें समझाएंगे इनफॉर्मली। ये पढ़ाना नहीं है, आप ट्रिप पे लेके जा रहे हो, वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हो। कम्युनिटी अवेयरनेस और कैंपेन टू अवेयर पीपल रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कम्युनिटी अवेयरनेस मतलब कम्युनिटी से कम्युनिटी जाकर के हम उन्हें सर्वे कराएंगे, उन्हें बताएंगे, कंसर्न्स कराएंगे। बीच में आपको पता ही है कि 4-5 साल पहले टाइगर मतलब शेर बचाओ, ठीक है, सेव द टाइगर्स करके एक कैंपेन हुआ था, क्योंकि टाइगर्स पोचिंग यानी कि जिसको आप कहते हो शिकार करना, ठीक है,
जो उनके चमड़ी के लिए उन्हें शिकार करा जाता है, उनके दांतों के लिए उन्हें शिकार किया जाता था, और जिसकी वजह से उनका जो संख्या था वो कम होते जा रहा था, और ऐसे लग रहा था कि बहुत जल्दी हम सिर्फ अपने नेशनल एनिमल को पिक्चर में ही देख सकते हैं, रियल में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत कोशिश के बाद बचाया गया। अभी जो नंबर है वो धीरे धीरे इंक्रीज भी हो रहा है। सो बेसिकली ये सब चीजें ना कम्युनिटी अवेयरनेस में कैंपेनिंग करके उन्हें बताना चाहिए। नॉन फॉर्मली कैसे बता सकते हैं? कोलैबोरेशन विद एनजीओ एंड अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हम एनजीओ के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड इको डेवलपमेंटल कैंप्स, आजकल तो बहुत सारे इको इको रिसोर्ट्स बनाए गए हैं और कैंपिंग सिस्टम बनाया गया है, ताकि आप नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और एनवायरनमेंट के बारे में जानो। कंस्ट्रेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन, जब हम एनवायरनमेंट एजुकेशन देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी खड़े हो जाते हैं, जैसे कि रिजिड स्पेशलाइजेशन। एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए स्पेशलाइजेशन नहीं है, और इतना हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन के स्टूडेंट एजुकेशन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जूलॉजी के स्टूडेंट जूलॉजी पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट पे ज्यादा कोई फोकस करता नहीं है बिकॉज ऑफ रिजिड स्पेशलाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, अभी तक नहीं पता एनवायरमेंट एजुकेशन किस डिसिप्लिन के अंडर में आएगा, या ये बायोलॉजी में आएगा, क्या ये केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स में आएगा, ज्योग्राफी में आएगा, कि हिस्ट्री में आएगा। तो इसके वजह से ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इंटरडिसिप्लिनरी वैल्यू, वो अपना वैल्यू खो दे रहा है, और कोई भी टीचर इससे पढ़ाने के लिए राजी नहीं होता है। क्योंकि वो कहता है आप केमिस्ट्री से हो आप पढ़ा दो, कहता है क्यों आप ज्योग्राफी से हो आप एनवायरमेंट पढ़ा दो, इस तरीके से। हाई पीपल टीचर रेशियो फॉर ऑर्गेनाइजिंग पीपल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स, ये एनवायरमेंट एजुकेशन में जब आप कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हो, कोई काम कराते हो, कोई एक्टिविटी कराते हो, डेमोन्स्ट्रेट कराते हो, वहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि पीपल टीचर रेशियो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि एनवायरमेंटल एजुकेशन ये एक प्रैक्टिकल चीज है, वहां पे बहुत कम रेशियो मेंटेन होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 15:1 और 10:1 होना चाहिए, लेकिन क्लास में 80:1, 75:1 ऐसा रेशियो है, तो वहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर पाना बहुत ही कम पॉसिबल होता है। पॉसिटी ऑफ क्वालिफाइड ट्रेंड एनवायरमेंटल एजुकेटर, एनवायरमेंट एजुकेशन के बारे में जो पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं ना, वो या तो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, और जो क्वालिफाइड ट्रेंड एनवायरमेंट एजुकेटर होते हैं वो कम नंबर में होते हैं। तो हमें एक क्वालिफाइड ट्रेंड एनवायरमेंटल एजुकेटर मिलना भी बहुत ही कम ये पॉसिबल हो पाता है। लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, सप्लीमेंट्री मटेरियल एंड रेफरेंस मटेरियल, हमारे पास उतने सारे मटेरियल्स नहीं है, ना इक्विपमेंट्स है, ना ही मटेरियल्स है, ना ही रेफरेंस मटेरियल्स है। टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए होता है। देखिएगा, जो जैसे चल रहा है हम सभी ये सोच रहे हैं जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, उसको रोको मत, इसमें कोई बदलाव हमें नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। कोई शर्ट हमने कल पहना है और आज हम देरी से उठे हैं, अरे वही शर्ट पहन लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, नया वाला लाओ, उसे धो, उसको आयरन दो, उसके बाद उसको पहनो, उसमें अतर लगाओ, ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, जैसा है वैसे चलने दो। अभी अगर मोबाइल में कोई स्क्रीन टूटा हुआ है, अच्छा वो टूटा हुआ है कभी देखेंगे, ठीक है, जैसा चलता है उसे चलने दो। वी डोंट वांट अ चेंज ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज वी आर वेरी मच लेजी। हम ये सोचते हैं कि जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, काहे की टेंशन लेना, टेंशन लोगे तो आपके ऊपर ही कहा जाएगा, ठीक है अगर आप चेंज चाहते हो ना आप खुद कर लो। जैसे कह देता है, बहुत सारे कोलिग्स आपको क्या कहते हैं कि आपको चाहिए ना, आपको चेंज चाहिए तो आप कर दो, हम तो नहीं करने वाले, ठीक है। ओके, क्या पूछ रहे हैं? पॉजिटिव स्वदिष्टता पूछ रहे हैं। पॉजिटिव क्या हो? पॉजिटिव मतलब क्लियर, क्लियर होता है, यानी कि स्वच्छ, क्लीन होता है, एक अच्छा क्वालिफाइड, एक अच्छा क्वालिफाइड एनवायरमेंटल एडुकेटर मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, फर्स्ट इज रिजिड स्पेशलाइजेशन। जैसे मैंने कहा स्पेशलाइजेशन मतलब आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, जैसे आप लोग अभी एजुकेशन का पढ़ाई कर रहे हो ना, आप एजुकेशन का पढ़ाई कर रहे हो, आप में एनवायरमेंट एजुकेशन कितना मैटर करता है? आप कहोगे सर ये मैटर नहीं करता है उतना ज्यादा, बस है इसलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यूजीसी नेट में एनवायरमेंटल एजुकेशन ऐड कर दिया गया है पेपर वन में, पेपर वन में है इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते। तो रिजिड स्पेशलाइजेशन की वजह से आप नहीं पढ़ते हो इस सब्जेक्ट को, ठीक है। हाई पीपल टीचर रेशियो फॉर ऑर्गेनाइजिंग पीपल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, मैंने कहा हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज। मान लीजिए आप चाहते हो आपके क्लासरूम में हर एक बच्चा एनवायरमेंट एजुकेशन का कुछ ना कोई काम
करेगा, यानी कि एक्टिविटी करेगा, हैंड्स ऑन लर्निंग सीखेगा। लेकिन आपके क्लास में 75 स्टूडेंट्स हैं, तो हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज एनी एक्टिविटी फॉर 75 स्टूडेंट्स? तो वहां पे हाई पीपल टीचर रेशियो की वजह से हम एनवायरमेंटल एजुकेशन के प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एंड लास्टली विल मूव ऑन टू ह्यूमन राइट एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट एजुकेशन आज की डेट में। सभी मानव का अधिकार होता है, जिसलिए के लिए इसको मानव अधिकार कहा जाता है। द यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948 डिफाइंड ह्यूमन राइट एज राइट्स डिराइव्ड फ्रॉम द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सन। एक इंसान होने के नाते आपका डिग्निटी, यानी कि आपका जो रिस्पेक्ट है उससे प्राप्त करना, या फिर आपको रिस्पेक्ट मिलना, ये सबसे बड़ा आपका अधिकार होता है। उसी को ह्यूमन राइट कहा जाता है। Human rights, when they are guaranteed by a written constitution, are known as fundamental rights because the written constitution is the fundamental law of the state. जब कोई ह्यूमन राइट, जब कोई इंसान का अधिकार यानी मानव अधिकार जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी करा जाता है कि आपको ये मिलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो फिर उसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है। सिंपली अगर कहूं, हमारे जो भी अधिकार हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। So human rights become fundamental right when it is given a position in the constitution. As per the United Nations Decade for Human Rights Education 1995 to 2004, human rights education is training, dissemination and information efforts aimed at building of a universal culture of human rights through the imparting of knowledge and skills in the molding of attitude. Human rights education में हम क्या देते हैं? ट्रेनिंग देते हैं, डिसिमिनेशन एंड इंफॉर्मेशन एफर्ट, यानी कि हम नॉलेज बांटते हैं, इंफॉर्मेशन बांटते हैं। क्यों? ताकि हम चाहते हैं सभी के अंदर ह्यूमन राइट्स का नॉलेज आ जाए। अभी अगर मैं पूछूं, जब तक हम ह्यूमन राइट एजुकेशन नहीं पढ़ते थे या फिर नहीं पढ़े थे, तब तक आप में से कितनों को पता था ह्यूमन राइट्स के बारे में, आपके अधिकारों के बारे में, मानव अधिकार के बारे में, यूडीएचआर के बारे में? नहीं पता था। हम पढ़े, इसीलिए हमें पता चला। इसीलिए एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंज। तो अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हो तो वो एजुकेशन के थ्रू में ला सकते हो। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, तो एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, ये कहा गया था। इसीलिए अगर आप ह्यूमन राइट्स को सभी के पास पहुंचाना चाहते हो और सभी को बताना चाहते हो कि ह्यूमन राइट्स क्या है, यू वांट टू मेक दिस यूनिवर्सल, देन यू शुड डू इट थ्रू एजुकेशन। सो इसलिए यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर ह्यूमन राइट एजुकेशन कह रहा है कि ह्यूमन राइट एजुकेशन में हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, नॉलेज बांटते हैं, इंफॉर्मेशन बांटते हैं अबाउट ह्यूमन राइट्स। क्या है ह्यूमन राइट्स, और उन्हें ये नॉलेज भी देते हैं और स्किल भी देते हैं, ताकि वो अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे। मान लीजिए मुझे अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में पता है, तो क्या मैं सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं करूंगा? डेफिनेटली करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कुछ अधिकार है, मानव अधिकार, तो मेरे सामने वाले का भी उतना ही अधिकार है। मेरा कोई अधिकार नहीं होता है कि उसके अधिकार को मैं मतलब झुठला सकूं। Simply, human rights education in all learning is that develop the knowledge, skill and values of human right. जो human rights के knowledge, skill, values provide करता है, वही education को हम human right education कहते हैं। Characteristics of human rights education, क्या characteristics है human rights के? Human rights are inalienable, मतलब कोई आपसे छीन नहीं सकता है इन अधिकारों को। आपने इस देश में जन्म लिया है, तो देश में जन्म लेते ही आपका कुछ अधिकार बन जाता है, जो कोई भी आपसे नहीं ले सकता है। दीज आर यूनिवर्सल, ये सभी के लिए होता है। दीज आर इरिवोकेबल, ये आपसे कभी छीना भी नहीं जा सकता है। बस एक कंडीशन आपको पता है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360, जो इमरजेंसी आर्टिकल्स होते हैं, इमरजेंसी के दौरान, आपातकालीन के दौरान एक को छोड़ के, एक अधिकार को छोड़ के बाकी सारे अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं, और वो प्रेसिडेंशियल रूल कहलाता है। उस टाइम में राइट टू लाइफ को छोड़ करके बाकी सभी जो अधिकार है वो रद्द किए जाते हैं। बट दैट इज एक्सेप्शन, जो मैंने कहा, बाकी सभी, अगर वॉर सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ही ये रिवोकेबल है, अदरवाइज इट इज इररिवोकेबल, आपसे कोई छीन नहीं ले सकता। दीज आर डायनामिक, ये बदलता रहता है, इसमें डायनामिज्म है, इसमें बदलाव होता है, इसमें चेंज होता है। ह्यूमन राइट्स चेंज होता है, इवॉल्व होता रहता है। इट इज कनेक्टेड विथ ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन राइट आपका डिग्निटी है, आपका अधिकार, आपका इज्जत होता है। ठीक है, आपको समान अधिकार मिलना, आपको डिग्निटी देना, आपको रिस्पेक्ट देना जैसा होता है। ठीक है, इट फुलफिल द पर्पस ऑफ लाइफ, और ये आपके जीवन का पर्पस जो है उसको फुलफिल करता है।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट एजुकेशन, क्या लक्ष्य है ह्यूमन राइट एजुकेशन का? फर्स्ट इज टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल। सारे इंडिविजुअल्स को हमें रिस्पेक्ट देना है, ये प्रमोट करना है। सभी को रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो। टू डेवलप द नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो हमें लोगों के अंदर नॉलेज, स्किल, वैल्यू डेवलप करना है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट के बारे में उन्हें नॉलेज मिलेगा, स्किल मिलेगा और वैल्यूज भी सीखेंगे। टू डेवलप द सोशियो साइकोलॉजिकल ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन पर्सनैलिटी के अंदर सोशियो साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, यानी कि दे विल डेवलप a kind of inclusivity in society, both in the society as well as in their psyche, or that is in their mind। माइंड में भी बदलाव होगा और सोसाइटी में भी बदलाव होगा। टू हेल्प पीपल एंड पॉलिसी मेकर्स टू इवॉल्व द वेज एंड मीन्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ ईच नेशन एंड दैट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए ये ह्यूमन राइट एजुकेशन आपको हेल्प करेगा, पॉलिसी मेकर्स को भी हेल्प करेगा, ताकि ना कि देश भर में क्या ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम चल रहा है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ह्यूमन राइट्स का क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में भी ये इंसाइट्स देगा, हेल्प करेगा। टू फोस्टर अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड जेंडर इक्वालिटी, इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग। टॉलरेंस, कैसे हम टॉलरेट करेंगे, आप टॉलरेट करना भी सीखोगे, जेंडर इक्वालिटी के बारे में सीखोगे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स में ये सब कुछ होता है। एवरी ह्यूमन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जेंडर, क्लास, कास्ट, रेस, सभी के ऊपर इक्वालिटी प्रिवेल्स। तो हमें ह्यूमन राइट्स को समझना चाहिए। टू डेवलप गुड इंटरनेशनल फ्रेंडशिप अमॉन्ग नेशन बाय एलिमिनेटिंग रेशियल, एथनिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, हमें एक अच्छा इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डेवलप करना है अमॉन्ग नेशन। हर दूसरे देशों के साथ हमें एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। हमें ये रेस, एथनिसिटी, रिलीजियस डिफरेंसेस को हटा देना चाहिए। कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, क्या क्या हम कैटेगरीज के थ्रू हम पढ़ाते हैं? फर्स्ट इज क्लासिकल राइट्स। ह्यूमन राइट्स के अंदर बहुत सारे क्लासिकल राइट्स हैं। दीज हैव बीन डिफाइंड इनटू इंक्लूड सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल राइट्स जो कॉमन राइट्स होते हैं एक इंसान का, और पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं जैसे कि वोट देना या फिर कंटेस्ट करना इलेक्शन में, ये सब होते हैं पॉलिटिकल राइट्स। एंड जनरली रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्शन अफेक्टिंग द इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द स्टेट, ये जो स्टेट का पावर है, यानी कि जो देश का जो पावर है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है टू अफेक्ट यू एज एन इंडिविजुअल। आपको अफेक्ट नहीं कर सकता कोई भी स्टेट। फंडामेंटल और बेसिक राइट, आपको पता ही है फंडामेंटल राइट क्या होता है। दे इंक्लूड ऑल द राइट पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल डिग्निटी एज वेल एज ऑफ देयर मटेरियल नीड। मटेरियल नीड और डिग्निटी को लेकर के जो बेसिक राइट बनता है, मटेरियल नीड में आपको पता होगा राइट टू प्रॉपर्टी, ऑलरेडी हमारे पास एक फंडामेंटल राइट था बट इसको रिमूव कर दिया गया विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये ह्यूमन राइट, हम इंडिया की अगर बात करें मटेरियल नीड के बारे में, उसको हटा दिया गया था, लेकिन बाकी देशों में भी तो ये होता है। कलेक्टिव और इंडिविजुअल राइट्स, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली होते हैं, जो आपको पर्टिकुलरली आपको मिलता है एज एन इंडिविजुअल, और कुछ होते हैं ग्रुप राइट्स, मतलब एक ग्रुप का अधिकार होता है। जैसे मैंने कहा बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कि माइनॉरिटी कैन एस्टेब्लिश देयर ओन इंस्टीट्यूशन एंड दे कैन एडमिनिस्टर देमसेल्व्स, यानी कि माइनॉरिटी, चाहे वो लैंग्वेज माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, वो अपना जो स्कूल कॉलेज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये कोई इंडिविजुअल की बात तो नहीं हो रही है, ये ग्रुप की बात हो रही है कि माइनॉरिटी कैन एस्टेब्लिश। तो यहाँ पे कलेक्टिव राइट इसको कहा जाता है। दिस इज स्पेशली व्हेन द एबिलिटी टू एक्सरसाइज राइट इज लिंक्ड टू मेंबरशिप ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, जो मैंने अभी बताया। फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन राइट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन होता है सिविल पॉलिटिकल राइट, जो मैंने अभी कहा पहले क्लासिकल राइट में। सेकंड क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल, जो मैंने यहाँ पे कहा। उसके बाद इन रिसेंट ईयर एकेडमिक्स हैव स्टार्टेड टू टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड जनरेशन राइट्स आल्सो। फर्स्ट जनरेशन सिविल पॉलिटिकल हो गया, सेकंड जनरेशन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल हो गया, थर्ड जनरेशन है विच आर सॉलिडारिटी राइट्स। सॉलिडारिटी क्या होता है? जैसे कि राइट टू पीस, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू फूड, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। ठीक है, ह्यूमन राइट्स आर नेसेसरीली डायनेमिक, जो कि बदलता रहता है। देन आता है यूएनएचआरसी। अब ह्यूमन राइट्स को इंश्योर कौन करेगा? अगर मान लीजिए आपका ह्यूमन राइट वायलेट होता है, आपका अधिकार किसी ने आपसे छीना है, या फिर आपको लग रहा है कि आपका मानव अधिकार आपसे कोई छीनना चाह रहा है, तो आप किसके पास जाओगे? अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें,
यूनाइटेड नेशन के लेवल पे है यूएनएचआरसी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूएनएचआरसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली whose mission is to promote and protect human right around the world। इसका काम होता है देश दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को कंट्रोल करना। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 15th March 2006 with 47 elected members for a period of 3 years। 3 साल के लिए 47 मेंबर्स के साथ इनका इलेक्शन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। अब आते हैं यूडीएचआर, जो हमने पहले पढ़ा था, यूडीएचआर डिक्लेयर हुआ था। सो यूडीएचआर है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द यूडीएचआर वाज प्रोक्लेम्ड ऑन 10th December 1948 एट द यूएन जनरल असेंबली हेल्ड एट पेरिस, फ्रांस। इसको प्रोक्लेम करा गया था, इसको लागू करा गया था 10th December 1948 से। कहां पे? यूएन जनरल असेंबली हुआ था पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स कवरिंग सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट अंडर द बेल्ट ऑफ ह्यूमन राइट। मैंने कहा था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन राइट्स को लेकर के ये यूडीएचआर बना है। इसमें टोटल 30 आर्टिकल्स है। The UDHR did not create any binding obligation for the member states of United Nation। ये किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है यूनाइटेड नेशन के मेंबर को कि आप इसको लागू करो। However, it proposed treaty was divided into 2 separate covenants। इसका जो 2 ट्रीटी है, चुक्ति है जिसको आप कहते हो, कंडीशंस है, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक है ICESCR, इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट। इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल एक तरफ, और एक है दूसरा इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ICCPR। सिविल पॉलिटिकल अलग, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल जो मैंने कहा था सेकेंडरी है। प्राइमरी कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन है सिविल पॉलिटिकल, सेकेंड जनरेशन है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। ये 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। अब हम चलेंगे, ये जो है जो जिसको हमें डिस्कस करना है, फर्स्ट है सिविल पॉलिटिकल राइट। ठीक है। सो ICCPR, it was introduced on 23rd March 1976। A total of 173 countries had signed for the collaboration till 2009 and it consists of 53 articles। 173 देशों ने मिलकर के इसे 2019 तक इससे कोलैबोरेट किया था और इसमें 53 आर्टिकल्स हैं। ICCPR protects rights like the right to life, liberty, fair trial, freedom of speech, expression, etc। इसमें सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर। The purpose of forming ICCPR was to recognize the dignity of each individual and give them civil and political right। Definitely ये इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट इसलिए बना था ताकि हम हर एक इंडिविजुअल का डिग्निटी रिकॉग्नाइज कर सके, उन्हें डिग्निफाई कर सके और उन्हें सिविल पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड कर सके। देन ICESR जो कि सेकेंड जनरेशन राइट्स कहा जाता है, वो क्या है? इट केम इनटू फोर्स ऑन 3rd March 1976। एज ऑफ 2019 again 173 signatory countries and consists of 31 articles। It majorly deals with rights like right to education, right to an adequate standard of living, right to health, labor rights। ये सेकेंडरी आता है, वो पहला आता है, पहले वो आता है, ये सेकेंड आता है। अब हम चलेंगे हमारे आर्टिकल्स में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या फंडामेंटली मिला है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 राइट्स हमें मिले हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 29 and 30 में है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको कहा जाता है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आर्टिकल 32। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए हमारे देश में, अगर इंडिया में की बात करें, इंडिया में ह्यूमन राइट्स को कौन इंश्योर करता है, कौन उसको कवच के जैसा रक्षा करता है, ह्यूमन राइट्स को रेगुलेट कौन करता है? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड NHRC टू एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्म असाइन्ड फंक्शंस रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया। इंडिया में ह्यूमन राइट्स को रिफॉर्म करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए और ड्यूटी निभाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने NHRC को बनाया है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, PHRA एक्ट कहा जाता है, 1993। NHRC was established on 12th October 1993 under PHRA Act 1993, Protection of Human Rights Act। It is in conformity with the Paris Meter Protection of Human Rights Act endorsed by UNGA, that is United Nations General Assembly, by its regulation number 48/134 on 20th December 1993। तो उनके रेगुलेशंस को मीट करने के लिए 12 अक्टूबर 1993 में NHRC बनाया गया है। The headquarter of the commission is in New Delhi and the commission may establish office at other places in India।
चेयरपर्सन है जस्टिस अरुण कुमार मिश्र, 2021 से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि 27th चेयरपर्सन है। फर्स्ट चेयरपर्सन इसके थे जस्टिस रंगनाथ मिश्र, 1993 टू 1996, याद रखिएगा। इसके चेयरपर्सन होते हैं कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। टेन्यूर ऑफ 3 years और अटेनमेंट ऑफ 70 years, उनका जो ऑफिस टाइम होता है, यानी कि उनका जो टेन्यूर होता है वो 3 साल का होता है, जब से वो अपॉइंट लेते हैं तब से 3 साल। और या तो 70 years ऑफ एज, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्पोजिशन ऑफ एनएचआरसी। एनएचआरसी किससे बनता है? इसमें टोटल 13 मेंबर्स होते हैं एनएचआरसी में। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर, ये 1 हो गए, यहाँ पे 5 टोटल मेंबर आ गए, और 7 जो है डीम्ड मेंबर्स आते हैं। द स्टैट्यूट प्रेस्क्राइब अ हाई क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटिंग चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन। इनके पास बहुत बड़ा लिस्ट होता है कि क्वालिफिकेशन बहुत चाहिए होता है यहाँ पे। फर्स्ट, चेयरपर्सन का क्वालिफिकेशन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चाहिए। मेंबर्स कौन रह पाएंगे? 1 member हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे होंगे। 1 member हु इज और हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट का हाई कोर्ट में वो चीफ जस्टिस रहे होंगे। 3 member टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम amongst पर्सन हैविंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के फील्ड में जिन लोगों ने काम कर रखा है, 3 उनमें से आएंगे। 1 of whom shall be women, एक वुमेन मेंबर रहेंगे। एक्स ऑफिशियल मेंबर में कौन रहेंगे? चेयरपर्सन ऑफ एनएच नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। इसमें मेंबर्स कौन रहेंगे? नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास का चेयरपर्सन रहेगा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरपर्सन रहेगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स उसके चेयरपर्सन रहेंगे, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, चीफ कमिश्नर ऑफ पीडब्ल्यूडी और पर्सन विद डिसेबिलिटी। दे आर द डीम्ड टू बी मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड डिस्चार्ज फुल ऑल फंक्शन एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन को छोड़ के बाकी सब काम करेंगे। एनएचआरसी हैज अ सेक्रेटरी जनरल टू एक्ट इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ के तरह काम करता है, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, to exercise such powers and discharge function as may be delegated to him। अब चलते हैं उड़ीसा में है कि नहीं? उड़ीसा में भी है ओएचआरसी, उड़ीसा ह्यूमन राइट्स कमीशन। इन परसुएंस ऑफ द सेक्शन 21 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा on 27th August 2000 constituted the OHRC, Odisha Human Rights Commission, to exercise the power conferred upon and to perform the function assigned to a state commission under chapter 5 of the act। चैप्टर 5 में कहा गया है कि स्टेट में भी अपना अपना ह्यूमन राइट कमीशन रहेगा। So OHRC is situated at तोशाली भवन, that is second floor in सत्यनगर, भुवनेश्वर। शहीद नगर के पास सत्यनगर है, वहां पे तोशाली भवन है, 4 मोहल्ले का, वहां पे सेकंड फ्लोर में है OHRC। इट इंक्वायर्स इनटू कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट वायलेशन पे ये काम करता है। इट्स फोकस इज टू स्ट्रेंथन द एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन राइट टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इन पर्टिकुलर द वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल मतलब शोषित ग्रुप, यानी कि जो डाउन ट्रोडन पीपल होते हैं, जिसपे अत्याचार होता है, उन ग्रुप के लिए ये काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, 2 वर्किंग मेंबर एंड ए सेक्रेटरी। चेयरपर्सन है, 2 वर्किंग मेंबर है और सेक्रेटरी है। फर्स्ट चेयरपर्सन थे जस्टिस डीपी महापात्र फ्रॉम 2002 टू 2007। करंट चेयरपर्सन है जस्टिस शत्रुघ्न पुजारी फ्रॉम 2023 टू कंटिन्यू। ये 9th चेयरपर्सन इसके रहे हैं, ठीक है। सो यस, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ज्वाइनिंग द बैच। बहुत सारे बच्चे आते हैं रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल में नोटिस आ चुका है ऑलरेडी, गवर्नमेंट के पास प्रोसेस में है। गवर्नमेंट इज डिस्कसिंग विथ डेलीगेट्स, ठीक है, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ उनका मीटिंग अभी चल रहा है कि किस प्रकार से हमें जो भी बैकलॉग पोस्ट्स हैं, पीजीटी, टीजीटी, लेक्चरर, ओईएस, ठीक है, ये सभी का हम कैसे जल्दी से जल्दी पोस्ट फिलअप कर पाए। इसके लिए ऑलरेडी एक कमिटी फॉर्मेशन हो चुका है, बहुत सीनियर मेंबर्स हैं वहाँ पे, हायर एजुकेशन का भी डिमांड वहाँ पे रखा गया है। तो इसलिए उनका जो रिपोर्ट आएगा 6 महीने के अंदर उनका रिपोर्ट आ जाएगा और रिक्रूटमेंट का नोटिस आ जाएगा। एक ही बार में वो बहुत सारे पोस्ट देने वाले हैं, और उस पोस्ट में अगर आपको क्रैक करना है तो अभी से आपका प्रिपरेशन जोरदार से होना चाहिए। इसीलिए न्यू ईयर के तौर पे हमने ऑफर लाया है। पहला ऑफर जो है, बेसिकली हमारे परफॉर्मेंस जो रहे हैं एसएसबी ओपीएससी में बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं, इसलिए ओपीएससी पीजीटी का बैच जो है वो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेश बैच स्टार्ट होगा, वो भी जस्ट एट ₹1299 ओनली, जिसमें आपका पूरा मटेरियल्स रहेगा, वीडियोस रहेंगे, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, ठीक है, इंक्लूडेड, ये सभी में इंक्लूडेड है।
अब एसएसबी लेक्चरर बैच जो होगा वो 2299 पर अवेलेबल होगा। लेक्चरर बैच बहुत ही फोकस में रहने वाला है, क्योंकि लेक्चरर का जो केस चल रहा था वो बहुत जल्दी खत्म होकर के उसको पोस्टिंग देगा। उसके बाद 2 साल हो चुके हैं, इस बीच 2 साल में जो बैकलॉग्स है, बहुत सारे रिटायरमेंट लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है गवर्नमेंट का कि बहुत सारे रिटायर कर जाएंगे और बहुत सारे खाली पड़ जाएंगे सीट्स। उस खाली को अगर वो पूरा नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ गेस्ट फैकल्टीज से चलाना पड़ेगा डिपार्टमेंट। तो इसलिए रिक्रूटमेंट जरूर करेगा और इस रिक्रूटमेंट में बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं। सो 2299 में आपको लेक्चरर बैच का भी मिल जाएगा। अगर कोई कॉम्बो लेता है स्मार्ट मूव में तो पीजीटी लेक्चरर 10 मॉक टेस्ट इसमें आपको दिए जाएंगे जस्ट एट ₹2,999 ओनली। और फॉर द 10 अर्ली बर्ड्स उसमें भी ऑफर है। अगर जो पहला 10 लोग जो ज्वाइन करेंगे हमें, उनके लिए जस्ट एट ₹2499 है। मुझे नहीं लगता कि ये नए मतलब जनवरी 1 तक भी जाएगा। जनवरी 1 तक भी नहीं जाएगा, क्योंकि उससे पहले 10 ज्वाइन कर जाएंगे। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे, आप 2499 में ज्वाइन कर सकते हो ये सारे बैच। जिनको भी कुछ पूछना है, जिनको ज्वाइन करना है, वो जस्ट हमें व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। जो भी क्वेरीज हैं आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। न्यू ईयर ऑफर है, न्यू ईयर तक ही है, जनवरी 1 तक, तो आप इसे जल्दी से अवेल कीजिए। पहले जो 10 आएंगे, पूरा 10 जो पहले आएंगे, उनके लिए 2499 में दिया जाएगा। उसके बाद जो आएंगे वो 2999 में आएंगे। इंडिविजुअली आएंगे तो 1299 में और 2299 में। सो आप चूज कीजिएगा जो भी आपको सही लगे, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे ऑल्सो आस्क अस। एंड इसका ग्रुप बहुत जल्दी हम बनाएंगे, आपको पहले सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा और हम टारगेट रखेंगे सिर्फ 3 मंथ्स का। 3 महीने ही हमारे पास टाइम रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपका नोटिस आ जाने वाला है। आप मार्क कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ 3 मंथ्स मतलब उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करेंगे। उसी के अंदर आपका नोटिस आ जाएगा और एग्जाम नोटिस आ जाएगा 1 महीने के अंदर। ठीक है, 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम नोटिस आ जाएगा। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके 1 महीने के बाद आपका एग्जाम आ जाएगा। तो आप अगर प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप रिवाइज कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो और एग्जाम क्लियर कर सकते हो। पीछे रह जाओगे तो पीछे के लोग आगे आ जाएंगे और आप और पीछे चले जाओगे, क्योंकि जो फ्रेश एप्लीकेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफाई करके आ जाते हैं। एमए एजुकेशन, एमएड के बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल क्वालिफाई करते हैं। तो आप अगर सोचते रह जाओगे तब तक कोई आगे जॉब लेके चला जाएगा। डोंट थिंक मच, ट्राई टू ज्वाइन अस एज सुन एज पॉसिबल। अभी चलेंगे हम लोग एमसीक्यू पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईसीडीएस स्टैंड फॉर। आईसीडीएस क्या होता है? इंटीग्रल चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट साइट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विसेज। वेरी गुड। मधुलिका, अर्पिता, सुप्रभा, रीना, सिद्धेश्वर, पुष्पलता, वर्षा, इप्सिता, मधुस्मिता, अन्नपूर्णा, असीम। बहुत अच्छे। आंसर इज सी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि लॉन्च कब हुआ था? 2nd October 1975 on the eve of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Question number 2. Which of the following is not a component of ICDs? ICDs का कौन सा component नहीं है? Supplementary diet, nutrition, high level education, all of the above. Very good. Keep answering. बहुत अच्छे, बहुत जल्दी आंसर आ गया सभी का। सभी का आंसर सी, और बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। हाई लेवल एजुकेशन देना आईसीडीएस का कंपोनेंट नहीं है, ये बेसिक एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है, प्रिलिमिनरी एजुकेशन वो प्रोवाइड करता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिकमेंडेड द एसयूपीडब्ल्यूज सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क्स? ये किसने रेकमेंड किया था? हार्टक कमिटी 1929, सर्जेंट रिपोर्ट 1944-45, कोठारी कमीशन 1964-66, नेशनल रिव्यू कमेटी 1978। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो ये सभी का सही आंसर आ गया है। कोठारी कमीशन 1964-66 में रेकमेंड किया गया था कि एसयूपीडब्ल्यूज लागू करे जाएंगे। बहुत अच्छे। यूडीएचआर वाज प्रोक्लेम्ड ऑन, यूडीएचआर कब प्रोक्लेम करा गया था? 10 मार्च 1993, 10 दिसंबर 1948, 10 जुलाई 1948, 10 अप्रैल 1993। हिंट आपको लोगों को दे रहा हूं कि इसी दिन को यूडीएचआर प्रोक्लेम हुआ था, इसी दिन, इसीलिए उसी दिन को हम क्या मानते हैं? ह्यूमन राइट्स डे मानते हैं। हर साल ह्यूमन राइट्स डे इसी दिन में मनाया जाता है। ठीक, बहुत अच्छे, सभी का आंसर
बी आ चुका है। यस, 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 से ये यूडीएचआर प्रोक्लेम करा गया था, इसलिए 10 दिसंबर हर साल 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे। अभी फिलहाल में 10 दिसंबर गया है, इसलिए इस 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे के रूप से मानते हैं। ठीक है। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ ओएचआरसी, ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन के करंट चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस विजय पटेल, जस्टिस डीपी महापात्र, जस्टिस शत्रुघ्न पुजारी, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। वेरी गुड। मधुलिका, अर्पिता, सुप्रभा, वर्षा, अन्नपूर्णा, रीना, मधुस्मिता, पुष्पलता। वेरी गुड टिकिना। सो आंसर इज सी, जस्टिस शत्रुघ्न पुजारी। ये ओएचआरसी, ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन के करंट चेयरपर्सन है। इसका जो ऑफिस है वो सत्यनगर में है, तोशाली भवन, सेकंड फ्लोर में। ठीक है। So thank you all. If you have any queries or any doubts, you may ask now and join the batch as soon as possible. Thank you all.